دے حوالہ تقریب ہند سنز کرنے تو ساروی کھت بڑ تقریب سپز بخشی سٹیڈیم سری نگرس مز منعقد یہ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند طرف رن فار یونٹی ہری جھنڈی ہاؤنہ آئی یت مز طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ ایل جی منوج سنہن سردار ولبھ بھائی پٹیل خراج تحسین پیش کران وونمت زِ تہذو صلاحیتو جرت تو ہمت ست آو ملک متحد کرنے یتھ ینہٕ واجی نسل خوشحال زندگی گزارن. سردار پٹیل کی یہی جو کھیل کے میدان میں آپ کا مارگدرشن کرے ایسی میں پرارتھنا کرتا ہوں. آج سے شروع ہو رہے گیمز کے دوارا آپ کو میدان میں ایسے پریاس کرنے ہیں جو آپ کو ہر گیم میں بہتر بنانے کی چڑھوتی دیں گے. نیشنل اسکول گیمز ایک ایسا اوسر بھی ہے جو دیش کے الگ الگ حصوں سے اکٹھت یواؤں میں میتری کا جنم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ وبھن سنسکرتی اور چھیتری وکاس کے برانڈ ایمبیسڈر بھی ہو سکتے ہیں. جموں کشمیر میں آپ کا پرواس یہاں چالو ہو اور راشٹر کے مکٹ مل کے روپ میں پہچانے جانے والے جموں کشمیر کی ترقی کے آج سے سبھی برانڈ ایمبیسڈر بننے والے واپس جا کر اس پروگریسو یونین ٹیریٹری کے نرمان سے سبھی کو آپ اوگت کرائیں گے ایسا میں وشواس رکھتا ہوں. اپنی بات سماپت کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا ہر میچ کے پہلے وجیتا بننے کے سپنے دیکھیے اور اسے ساکار کرنے کے لیے خود پر پورا بھروسہ رکھیے. آپ کے سامنے آکاش چھونے کا اوسر آیا. اس اوسر کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور بھارت کی اسپورٹنگ پاور کے لکش میں آپ سب کا یوگدان میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو کیسی طاقت دے گا جو آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں ترنگے کی شان کو بڑھائے گا. میں ایسی کامنا کرتا ہوں اور اس آیوجن کے لیے آپ سب کے پرتی ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں. یہ پریو گلشن گراؤنڈ جمس مز ایکتا دیوس حوالہ تقریب سنز کرنے یہ صوبائی کمشنر جموں سند طرف ریس ہری جھنڈی ہاؤنہ آئی. ات موقع پہ کہیاو طالب علمو ریس مز شرکت کر تت ات موقع پہ سردار ولبھ بھائی پٹیل خراج تحسین تے پیش کرنا آمد. تو ہے ایکتا دیوس منایا جاتا پورے دیش میں جو کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا جنم دیوس ہے اور ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے کہ بات کی ایکیکرن کے اندر. تو یہ پورے دیش میں منایا جا رہا ہے, یہاں بھی منایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آج کا دن جو ہے JKUT کا ایک فاؤنڈیشن ڈے بھی ہے. تو اس کے انترگت آپ نے دیکھا کہ صبح رن فار یونٹی کا آیوجن کیا گیا جس میں سبھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اسکول کے بچوں نے, سب نے. تو ایک یہ اس میں میسیج ہے کہ ہم سبھی ایک ہو کر کے بھارت کی ایکتا اور ایک اکھنڈتا کو بنائے رکھیں گے. تو اسی طریقے سے دن میں بھی فنکشن آیوجت کیے جا رہے ہیں اور اسی ٹائپ کی رن فار یونٹی ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ آرگنائز کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سبھی بڑے فنکشن کیے جا رہے ہیں جس کے اندر اچیومنٹ دکھائے جا رہے ہیں. سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جیونی کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے جس سے کہ ینگر جنریشن کو بہت زیادہ اویئرنیس ہو اور ہم بات کی شمال کشیر بارہمولہ مز آواز ایکتا دیوس تو یوٹی دہ حوالہ اکہ تقریب سنز کرنے یت مز ضلع ترقیتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سیرش اصغر تو انتظامیہ کیو دویمیو ذمہ دارو علاوہ طالب علمو تو پولیس افسروں شرکت کر. ات موقع پر طالب علمو طرف کہیا کلچرل پروگرام تو پیش کرنا آئی تت آو ایکتا قائم تھانس حوالہ حلف تلنا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر خطاب دیا ڈکلیئر کیا 2014 میں
सरदार वल्लभ भाई, तो मैं इस हवाले से कहना चाहूंगा निकाल होगा तो मार्च पास हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, वार्ड में हमने यूटी दिवस मनाया। उसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, सिविल सोसाइटी थी, हमने प्लेजेस लिए हैं, यूनिटी प्लेजेस, कल्चरल प्रोग्राम्स, एकेडमिक को बहुत सारे कंपटीशन जो हैं वो स्कूल्स कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। आज सुबह भी रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज़ करवाया, योगास जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। और आज ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक प्रोग्राम हमने शौकत अली स्टेडियम में किया, जिसमें डिफरेंट बच्चे जिन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट किया था उनको अवार्ड किया है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए। एंड सिक्योरिटी सरदिल पुंछ मज आवाज कौमी यकजहती तो यूटी दो हवाला तकरीब हंद संज करने यथ मज जिला इंतजामी के अफसरों सान तलब इलमों तो खिलाड़ियों शिरकत कर अत मौके पे आव रेस मुकाबलों संज ते करने यथ मज तलब इलमों बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुज़हिर कोर। जिला पुंछ में भी रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज की गई ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, और उसके साथ साथ हम 5th यूटी फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस रन फॉर यूनिटी में भारी तादाद में बच्चों और एम्प्लॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन आई बिलीव 500 तक रनर्स थे और एसएसपी ऑफिस से लेके यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम तक ये रखी गई। काफ़ी पब्लिक मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया और इस रन को सराहा भी गया और चीयर अप भी किया गया। हम शाम को भी एक यूनिटी कॉन्सर्ट मना रहे हैं जिसमें हम जो स्पेशल हमारी यूटी की अचीवमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्री भी दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। साथ में यूनिटी प्लेज भी एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्त जम्मू कश्मीर मज युद्ध आज सरकारी सतह पे यूटी दह मनाने तथ राजौरी मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ ब्लैक डे मनाने आमुत। वाल कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करने आमुत तो तमो जम्मू कश्मीर रियासत दर्जे बहाल करने को मुतालबा कोरमुत। अत मौके पे पार्टी जिम्मेदारों तरफ कत करान वन आमुत जो यूटी बनाने पत् जम्मू कश्मीर हिंद लोग मुख्तलिफ मुश्किलन मज हेनाम तो तमो हुकूमतस पे जोर दितमुत जम्मू कश्मीर गस रियासत दर्जे बहाल करने युन युथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। पिछले दिनों 10 तारीख को जम्मू के अंदर इंडिया अलायंस की एक जो है मीटिंग थी 10 सितंबर को, उसमें हम ऑल पार्टीज जो थे वो इकट्ठे होके उस दिन भी हमने ये आवाज़ जो है वो उठाई थी। इंडिया अलायंस बनने का यही है जो हमारे जम्मू कश्मीर में उस दिन जो जम्मू के अंदर हमारी मीटिंग हुई और उसके बाद हमारे ऑल पार्टी मीटिंग जो हमारे सीनियर लीडर्स थे उनकी मीटिंग हुई। उसका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे एक तो चुनाव कराओ और दूसरा जो है हमारी रियासत को जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि यूटी से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में हर आदमी जो है वो परेशान है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक आवाज़ है आम पब्लिक की, किसान की, बेरोजगार नौजवान की, गरीब की, मजदूर की, सबकी, बिजनेसमैन की, सबकी आवाज़ है कि रियासत को बहाल किया जाए और यहाँ चुनाव कराए। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ वन आमुद युदवस पान नीन पार्लियामेंट इलेक्शनस मज हिस्स, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कर प्रत सूरतस मज पार्लियामेंट इलेक्शनस में शिरकत। तमो वोन तम रोजन रियासत दर्जे बहाल करने बाबत जदोजहद करान तो जम्मू कश्मीर रियासत दर्जे यी कुन त सूरतस मज बहाल करना। उमर अब्दुल्लान कथन बाबत सरहदी इलाक करनाहस मज अकिस तकरीब दौरान कर्मज। हम हर हाल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं नहीं करूंगा वो दूसरी बात है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम करेंगे। हम ये मैदान जो है बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम या डी टीम के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। हमें अगर असेंबली से पहले स्टेट का दर्जा नहीं मिलता तो लड़ के असेंबली के बाद स्टेट का दर्जा हासिल करेंगे, लेकिन हासिल करते रहेंगे। क्या आने वाले टाइम के अंदर अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर भी आप अलायंस के साथ लड़ेंगे या अलायंस से हटकर अपनी सीटों की विशेषता के ऊपर लड़ेंगे? इस तरह का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं। फिलहाल मुझे लगता है इंडिया अलायंस वाले जो 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं
उनकी तवज्जो उस तरफ है। वहाँ के नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट की बात चलेगी। सर, आप कुपवाड़ा में कल आपने बोला कि इंडिया अलायंस जो है वो बाहर कमजोर होता नजर आ रहा है। क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ रहेगी या कमजोरी की बात होगी? मैंने आपसे कहा ना, इस तरह की कोई बात तंजीम के अंदर अभी हुई नहीं है। ये 5 रियासत के इलेक्शन जो है ये हो जाने दीजिए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो हम बैठ के इस पर बात करेंगे। जहां तक इंडिया अलायंस की अभी की हालत की मैंने बात की, ये कौन सी छुपी हुई बात है? आप देखिए, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं? क्या कांग्रेस और आम आदमी के दरमियान रोज टुका टुकी नहीं हो रही है? ये हकीकत है। अब इसका कितना असर पूरे इंडिया अलायंस पे पड़ेगा, ये वक्त ही साबित करेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी सिंह तरफ वन आमुत जे इलेक्शन कमीशन छन आजाद इदारा रोदमुत तिकेज तम जम्मू कश्मीर कुन कह दस्तरस दिवान। अल्ताफ बुखारी यूटी डेस हवाल कत करान यूटी जरिए आई सन पहचान खत्म करने तो यम दह रियासतुक दर्ज बहाल करने यी तमी दह यी रियासतुक दह मनाने। They are no longer independent bodies, तो इसलिए फायदा क्या है उनको बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात। हाँ, हम कहते हैं, आपको कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अंधे भी बहरे भी जम्मू कश्मीर को लेकर, वो बाकी जगह के लिए उनको सब कुछ दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर की जब बात आती है उनको कोई चीज दिखाई नहीं देता है। और मैं ये शरेआम कहता हूँ, इसमें कोई फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है जहाँ कांग्रेस उसको ब्लैक डे मानती है, आप किस कैसे लेते हैं? हम क्या मनाएं? क्या अब आपसे पूछता हूँ, हम क्या मनाएं? हमें तो पहचान एक थी, स्टेटहुड थी, वो मिली नहीं, तो हम किस तरह मनाएं कि किस चीज को माने? जो लोग मना रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये यूटी रहेगी? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। हम स्टेटहुड मनाएंगे, जिस दिन स्टेटहुड लाएंगे वो दिन मनाएंगे और उसी दिन की खुशी मनाएंगे। बदकिस्मती की बात है कि अमन बॉर्डर्स पे आ गया था, फिर बीच में से कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क की जो सेना है वो भरपूर जवाब देंगे और शायद पॉलिटिकल लेवल पे भी इन लोगों ने कोई ना कुछ हल किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ आवाज जुमिस मज इंदिरा गांधी सज बरसी हवाले एक तकरीब सज करने या दौरान सबक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी खराज तहसीन पेश करना आव। अत मौके पे कांग्रेस लीडरों तरफ वन आमुत इंदिरा गांधी मुल्क खतर कुर्बानी दिसमज तो तमो वोन यह दह याद पावान मुल्क सत मजबूती सान खड़ा रोजुन। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें देश को कांग्रेस आगे भी इस तरह की कश्मकश के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। कई ताकतों का आज भी मुकाबला कर रही है कांग्रेस और मैं समझता हूं कि आज के दिन से हमारी नई पीढ़ी को ये याद दिलाने की भी जरूरत है कि कांग्रेस पावर के लिए भी में बैठने के लिए कांग्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट, बिफोर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम, इस देश की एकता और इसको बांधे रखने के लिए तमाम ज़बानें बोलने वाले तमाम तर हमारा आज आन जहानी इंदिरा जी का डेथ एनिवर्सरी थी। इंदिरा जी आयरनी लेडी थी जिन्होंने इस देश को हमेशा मजबूती से खड़ा रखा। जितनी भी जंगें इंदिरा जी के टाइम में हुई वो भारत देश ने जीती हैं और इंदिरा जी ने अपनी जान का नजराना जो है वो इस देश के लिए जो है पेश किया। तो मैं आज इंदिरा जी के इस डेथ एनिवर्सरी पे तमाम देश के वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि उनको पेश करता हूँ कि उन्होंने जो अपनी जान का नजराना इस देश के लिए पेश किया। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग तरफ आज लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी मज एक तकरीब हंद सज करने या दौरान कहियाओ खवातीनों पार्टी मज शमूलियत इख्तियार कर। अत मौके पे खवातीन विंग हज नायब सदर साबिया कादरी सिंह तरफ वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जमीन सुथरस पे मजबूत तो लुख जोक तर जोक यथ पार्टी मज शमूलियत इख्तियार करान।
का प्रोग्राम था, इसमें ज्वाइनिंग थी लेडीज की, हजरत बल से थी, ईदगाह से थी, लाल चौक से थी, खनमू से थी, लाल चौक ब्लॉक की थी। और हमने लाल चौक ब्लॉक वुमेन्स विंग का कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट, पूरी बॉडी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो पूरा हमने किया। वो हमारी जो वुमेन्स विंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये कार्डर बेस्ड तंजीम है। जम्मू कश्मीर SRTC मुलाजमों तरफ श्रीनगर मज इंतजामिया खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमद। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमद तम पतमो 14 वरियों पे मुतलका महकमस मज काम करान, ताहम छन तम वन मुस्तकिल करना आमद, यम किन तम मुश्किलन मज आमद। तो तमो मवाल LG इंतजामिया अपील करम सन मुतालबो पूर करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट। ड्राइवरों को यहाँ 14 साल हुए काम करते हुए, जबकि उनको 8 साल के बाद किसी भी हालत में रेगुलर होना था। अभी तक उनकी रेगुलराइजेशन पेंडिंग है। उनको रेगुलर करने के लिए हमारा आज ये प्रोटेस्ट है। और दूसरी बात ये है 83% तफावत है हमारे डीए और स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम के डीए में। तो मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट आसमान छू रहा है। हमारे फैमिली पर क्या असर पड़ा होगा, ये 83% हमें कम तनख्वाह मिल रही है। अगर टेंटुली हम देखेंगे तो मेरे तनख्वाह में कोई 10-15 हजार रुपए फर्क है, जबकि मार्केट में हर एक के लिए रेट एक ही। 83% जो हमारा डीए है उसको ये रेगुलर करने के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। और तीसरी बात यह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन हमें नहीं मिल रहा है, जबकि JNK में जितने कॉर्पोरेशन है 2-3 को छोड़कर सबको 7th पे कमीशन मिल रहा है। और दूसरी बात हमारे छोटे मुलाजिम है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है मिनिमम वेजेस एक्ट, उनके लिए हम चाहते हैं उनको मिनिमम। ये जुम्मस मज SRTC मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमद। तो तमो कत करान वोनमत तम कहिया काल पे पन मुतालबा हल करने मंग करान, ताहम इंतजामिया अत कुन कह जोन दिवान यम किन तम आवलिनस मज आमद। तमो मवाल इंतजामिया अपील करम तिहज नौकरी मुस्तकिल तनख्वाह मज इजाफ तो तिहंदिस हकस मज गि 7th पे कमीशन लागू करने युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। 7th पे कमीशन पेंडिंग है, रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज पेंडिंग है, और जो रिवीजन हुआ था मिनिमम वेजेस एक्ट में उसको लागू किया जाए। अब 200 करोड़ कमाने के बाद भी अगर यहाँ का मुलाजिम 7th पे के लिए तरसेगा, रेगुलराइजेशन के लिए तरसेगा, डीए के लिए तरसेगा, फिर हमें क्या करना है? 1000 करोड़ कमाना है खटारा गाड़ियों से? अब खुदारा फैसला कीजिए। आज तक बोलते थे RTC की कमाई नहीं, आज हमने 200 करोड़ कमा के दिए। 200 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। यहाँ कितने महकमे जात, कितने कॉर्पोरेशन ऐसी हैं जो खासकर महकमे 10 पैसे की कमाई नहीं होती, लेकिन उनको कोई मसला दरपेश नहीं है। तो हम यहाँ पे आज पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं। सरकार को यह बताएं, श्रीनगर में भी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने कहा है कि हमारी डिमांड 31 तारीख तक पूरी करो। नाज़रीन कोशर खबरनामा सयान दियो इजाजत।